Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your DBT JRF examination. So this is the second part in which I will discuss some important match the following questions. I have already provided the first part in which I have discussed so many different match the following questions, and through that you will get to know that how many different questions can be framed from a single matching. So do watch it out, and this is the second part of it. We will continue the next questions. So in this question you have to match the task given in group 1 with associated technique conventionally used as listed in group 2. So in the group 1 you have listed some techniques: ploidy analysis, profiling DNA methylation, identification of non-coding RNAs, identifying SNPs, and satellite DNA isolation. So you must be aware about the bisulfite sequencing. जो bisulfite sequencing है, it is a method to determine the DNA methylation pattern by treating the DNA with sodium sulfite से treat करते हैं, so that we can determine the DNA methylation pattern which converts the unmethylated cytosins to uracil. बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग किस लिए करते हैं? बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग करते हैं टू मैप द डीएनए मिथाइलेशन. तो 4 का क्यू किस में दिया है? 4 का क्यू दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है. तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. उसके अलावा प्लॉइडी एनालिसिस. सो प्लॉइडी एनालिसिस कैन बी डन थ्रू दिस फिश, दैट इज फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. तो पी का क्या होगा? पी का होगा 3. सो पी का 3 किस में दिया है? पी का 3 इज ओनली इन बी, यानी सी बी हमारा एलिमिनेट हो गया. इसका आंसर हो गया बी. सो जो प्लॉइडी एनालिसिस करते हैं, प्लॉइडी एनालिसिस का मतलब होता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ पर्टिकुलर सेल. सो इट कैन बी अचीव थ्रू डिफरेंट मेथड्स लाइक फ्लो साइटोमेट्री, कैरियोटाइपिंग, एंड ऑल्सो थ्रू द फिश. सो fish is a technique which is used to assess the number of changes in the chromosomes for the identification that whether it is triploidy, diploidy, polyploidy, etc. So प्लॉइडी हम लोग पता कर सकते हैं फिश के थ्रू. नाउ यहाँ पर एक और दिख रहा है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. ऑलवेज ट्राई टू पिक दोज ऑप्शन विथ विच यू आर फेमिलियर विद, जैसे बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग, आरएनए सीक्वेंसिंग, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, फिश, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, बहुत बार आपने टेक्निक्स में पढ़ी है. सो फॉर द सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन यू कैन डू द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी टी का 5. So satellite DNA, which is a distinct DNA component with different density than bulk genomic DNA, can be isolated using the density gradient centrifugation. Obviously इसका density अलग होगा क्योंकि जो पूरा बल्कि genomic DNA होता है उसके comparatively satellite DNA जो होगा वो कम बल्कि होगा. So it can be separated due to its different density. So density gradient centrifugation का use होता है इसमें. A solution with density gradient often using cesium chloride is used, and when DNA is centrifuged it will migrate to a position where its density matches the density of the surrounding solution. So जो satellite DNA है उसको हम separate कर सकते हैं density gradient centrifugation से. So ये भी हो गया. Now उसके अलावा identifying non-coding RNA, so that can be done through the RNA sequencing, easy है. Now identifying SNP, so we can go to the exome sequencing. SNPs are single nucleotide polymorphism, so they can be just determined through the exome sequencing. So ये matching बहुत ही important है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So I hope आपको समझ आया होगा. Now moving on to the next question. इसका आंसर ऑप्शन बी है. Write it down on your notebook. Now next question. Match the following rice diseases in group 1 with their causative agents in group 2. So the first one is blast, false smut, sheath blight, downy mildew. So ये जो जितने भी diseases आपको दिख रहे हैं, these are most commonly caused diseases in the plant. So ये बार बार पूछा जाता है. So it is very important. So you should know about all those diseases. So जो mildew disease है, downy mildew, it is a disease that affects a variety of plant, particularly vegetables में देखने को ये मिलता है. vegetable में, fruits में and ornamental plants में.
ये देखने को मिलता है। सो दिस डाउनी माइल्ड्यू इज कॉज्ड बाय द स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा, यानी एस का फर्स्ट किसमें है, यहाँ है एंड यहाँ है, यानी कि बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक डिजीज है फॉल्स स्मट इज अ डिजीज इन विच द राइस ग्रेन आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ मास ऑफ येलो फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि ये जो है वो डिजीज फंगल डिजीज है जिसमें जनरली ये ग्रेन्स में देखने को मिलता है। एंड इसमें कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस ऊस्ट्रैगीनोइडिया वायरेंस। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्यूका थ्री किसमें है, सिर्फ इसमें है। नाउ उसके अलावा आता है ब्लास्ट। ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय द मैग्नोपोर्टी ग्रीसिया। पी का फिफ्थ। नाउ आर का लास्ट बचा है शीथ ब्लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू Rhizoctonia solani. I have already uploaded the different plant based diseases, so you can check it out because इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेगा। जैसे शीथ ब्लाइट डिजीज है, इट इज अ फंगल डिजीज दैट इफेक्ट्स द राइस प्लांट्स causing significant yield loss for the farmers. इसको क्या बोलते हैं, इसको स्नेक स्किन डिजीज भी बोलते हैं, यानी शीथ ब्लाइट इसका दूसरा नाम है स्नेक स्किन डिजीज, क्योंकि इसमें वैसा ही वो दिखने लगता है। दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज कॉज्ड बाय द राइजोक्टोनिया सोलानी, यानी इस वाले स्पीशीज से ये होता है। तो आप इसी चार से ये याद रख लीजिए बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड डिजीज। डाउनी माइल्ड्यू जो है वो होता है स्क्लेरोप्थोरा से, शीथ ब्लाइट जो है वो राइजोक्टोनिया से होता है, फॉल्स स्मट जो है वो उस्ट्रीलेगो से होता है, ब्लास्ट जो है वो मैग्नोपोर्टी ग्रीसिया से होता है। तो इस तरह से आपने चार डिजीज तो ऐसे ही याद कर लिए। ये जितने भी ऑप्शंस बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन मैचिंग में आएंगे अलग अलग डिजीज का, इनमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। थ्रू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ए था। नाउ दिस वन you have to match the group 1 cocaine, caffeine, morphine and atropine. You must be aware about the cocaine. Cocaine is a very common term, you have read it. Cocaine is a tropane alkaloid that act as a central nervous system stimulant. Cocaine क्या करता है, central nervous system को stimulate करने का काम करता है। It is a central nervous system stimulant. It is extracted from what? It is extracted from कोका, यानी कि पी का थ्री किसमें, ओनली इन फर्स्ट, यानी आपके ये बी सी डी तीनों ही एलिमिनेट हो गए। कैफीन इज प्रेजेंट इन कोकोआ एंड मॉर्फिन। मॉर्फिन तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग है। तो मॉर्फिन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिया भी कहते हैं। इट इज एन ओपिएट दैट इज फाउंड नेचुरली इन द ओपियम, अ डार्क ब्राउन रेजिन प्रोड्यूस्ड बाय द लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट में ये रिलीज होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। दिस इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एंड इसके अलावा आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय नाइटशेड। ये एट्रोपा या एट्रोपिन जो है इट इज नोन एज द डेडली नाइटशेड और बेलाडोना। ये नाइटशेड में मैच होगा, एस का 2 ये रहा। You should always remember the source from which it is extracted and the common name of that particular drug. Atropa belladonna is a poisonous plant called the deadly nightshade, and its roots, leaves and fruit contain the belladonna alkaloid, atropine, hycosamine and scopolamine. इसमें रहती हैं और ये क्या करता है, ये मसल स्पैज्म को रिलैक्स करता है and it is used to regulate the heartbeat. यहाँ पे मैं फोटोग्राफ भी लगा दूंगी उस प्लांट का। This can also be asked like caramelization, denaturation, oxidation, bleaching, किस फूड कंपोनेंट में किस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। Caramelization is related to the process of heating sugar to break it down into simpler compound, and उसकी वजह से it turns into a golden brown or dark brown in color. Caramel is related to the sugar. पीका टू किसमें है, इसमें है एंड इसमें है। ये दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ डीनेचुरेशन टेक्स प्लेस इन प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं जनरली एट एक्सट्रीम और हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्यू का क्या होगा, 4 होगा, क्यू का 4। नाउ ऑक्सीडेशन किसका होता है, लिपिड एंड फैट्स का, आर का फर्स्ट।
एंड ब्लीचिंग, ब्लीचिंग किस में होता है? पिगमेंट्स में ब्लीचिंग होता है. सो एज पर द ऑप्शन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए और 1, जो भी आप कंसिडर करें. So the right answer for this question is option 1. So all these questions are very important for DBT, इसलिए मैं matching questions provide कर रही हूँ आपको, because through that matching many individual questions can be framed. So this is all for today. I hope you liked it. In 5 minutes you have solved so many questions, so write it down in your notebook, and if you like my efforts you can hit the like button and do subscribe the channel for more such videos.